یہ 12 जनवरी 1972 کی بات ہے جب سقوط ڈھاکہ کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 1970 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ ان انتخابات میں اس جماعت نے قومی اسمبلی کی 162 میں سے 160 نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی 300 میں سے 228 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر یحییٰ خان انتخابات کے فوراً بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار عوامی لیگ کے سپرد کر دیتے، مگر عوامی لیگ ملک کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتی تھی جو صریحاً ملک کے ٹوٹنے کی دستاویز تھے۔ صدر یحییٰ خان نے ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاستدانوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حل پر پہنچنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منعقد ہوتا 1 مارچ 1971 کو صدر یحییٰ خان نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کے اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا۔ وہاں کے عوام یہ نعرہ لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ ہم آزاد بنگال چاہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اب بھی مفاہمت کے حق میں تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں متعین اعلیٰ فوجی حکام سے نہایت عاجزانہ انداز میں اپیل کی کہ حضور اب بھی وقت ہے، مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجیے، میں ابھی بھی صورتحال کو قابو کر لوں گا۔ اگر غیر معینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان میں لاقانونیت زور پکڑنے لگی۔ مجیب الرحمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درآمد کے لیے ہدایتیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ یہ گویا سول نافرمانی کا اعلان تھا جسے بھارت کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ادھر مغربی پاکستان میں 14 مارچ 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں اقتدار کو اکثریتی پارٹی کو منتقل کر دیا جائے اور 6 نکات کے پس منظر میں ملک کے دونوں حصوں کی اکثریتی پارٹی کو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ یہی وہ تقریر تھی جس پر روزنامہ آزاد کے مدیر عباس اطہر نے ادھر تم ادھر ہم کی سنسنی خیز سرخی لگائی تھی۔ بھٹو کے اس بیان کو عوامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ اگلے روز صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ مذاکرات 24 مارچ تک جاری رہے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خفیہ طور پر ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ انہی مذاکرات کے دوران 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے یوم پاکستان کی بجائے یوم مزاحمت منایا۔ اس دن عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان نے ہتھیار بند دستوں کی سلامی لی۔ اس صریحاً بغاوت سے نمٹنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے نگران میجر جنرل راؤ فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے۔ اس آپریشن کا آغاز 26 مارچ 1971 کو رات 1 بجے ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے، لیکن ان کے تمام ساتھی بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بھر میں نشر ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری پیغام ہو۔ آج سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کسی کے ساتھ بھی ہوں، قابض فوج کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں۔ آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک قابض پاکستانی فوج کا آخری سپاہی بنگلہ دیش سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ آخری فتح ہماری ہی ہوگی۔ عوامی لیگ کی عسکری تنظیم مکتی بہانی نے، جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے، بھارتی اسلحہ کی طاقت اور تربیت کے زور پر پاکستانی فوج سے بھرپور مقابلہ کیا۔
ढाका तो एक रात पुरस्कून हो गया, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के दूसरे शहरों चिटागांग, राजशाही और पबना में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फौज को इन तमाम इलाकों में अमन कायम करने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी शाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ढाका से कराची पहुँचे। कराची पहुंचकर उन्होंने अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने मुजीबुर रहमान को ढाका छावनी में मुंतकिल कर दिया। यहाँ से 3 दिन के बाद उन्हें तैयारे के ज़रिए कैदी की हैसियत से पाकिस्तान भेज दिया गया। इधर 10 अप्रैल को ढाका में कायम इनकलाबी हुकूमत तश्कील दिए जाने का ऐलान हुआ और 17 अप्रैल को इस इनकलाबी हुकूमत में शामिल अफराद ने अपने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। मुजीबुर रहमान को सदर, नज़रुल इस्लाम कायम मकाम सदर और ताजुद्दीन अहमद को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। मार्च और दिसंबर के इस दौरानिए में मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान, फैसलाबाद और मियांवाली की जेलों में कैद रहे, जहां उन पर खुफिया तौर पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में मुजीबुर रहमान को सज़ाए मौत सुनाई गई। एंथोनी मैस कैरन हौसन ने अपनी किताब बांग्लादेश अ लेगेसी ऑफ ब्लड में लिखा है कि सकूते ढाका से एक दिन कबल 15 दिसंबर 1971 को जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को फांसी देने का फैसला किया। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए रावलपिंडी से एक फौजी टीम मियांवाली रवाना हुई, जहां शेख मुजीबुर रहमान दुनिया के हालात से बेखबर कैद के दिन काट रहे थे। उनके कमरे के सामने एक कब्र भी खोदी जा चुकी थी, मगर मियांवाली जेल के जेलर की मुज़ाहमत की वजह से जनरल याहिया खान के इस फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। शेख मुजीबुर रहमान जेलर की इस मेहरबानी को कभी ना भूल सके। बांग्लादेश वापसी के बाद 1974 में उन्होंने इस जेलर को ढाका मदऊ किया और इसका इस्तकबाल ज़ाती मेहमान के तौर पर किया। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान में मुतय्यन पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीखी रेस कोर्स ग्राउंड में भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका फ़ौजी कमान के सामने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश अब आज़ाद मुल्क बन चुका था। दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोगों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से मुजीबुर रहमान की हिफाजत का मुतालबा किया। सकूते ढाका के बाद 27 दिसंबर को जब बाकी मानदा पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत कायम हो चुकी थी, बांग्लादेशी हुकूमत ने मुतालबा किया कि मुजीबुर रहमान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया जाए। रूस और भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक और मुख्तलिफ आलमी तंजीमों ने भी मुजीबुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को आज़ाद बांग्लादेश के सदर को कैद में रखने का कोई हक़ नहीं है। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान मुलाकातें शुरू हुईं। 3 जनवरी 1972 को सदर भुट्टो ने कराची में एक आम जलसा से खिताब किया। इस खिताब के आखिर में उन्होंने अवाम से राय मांगी कि क्या शेख मुजीबुर रहमान को गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ कर दिया जाए। अवाम ने बड़े पुरजोश तरीके से शेख मुजीब की रिहाई के हक़ में हाथ उठाकर राय दे दी। चंद दिन बाद 8 जनवरी 1972 को PIA के एक ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए शेख मुजीबुर रहमान को लंदन पहुंचा दिया गया। उनके साथ अवामी लीग के रुकन असम्बली डॉक्टर कमाल हुसैन और उनके अहले खाना भी थे। रवानगी से कबल शेख मुजीबुर रहमान ने 4 घंटे तक सदर भुट्टो से बातचीत की। इस मुलाकात में डॉक्टर कमाल हुसैन और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी मौजूद थे। लंदन पहुंचकर शेख मुजीबुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि बांग्लादेश एक आज़ाद और दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम मुमलकत है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सदर भुट्टो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान राबता रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि जब तक मैं बांग्लादेश पहुंचकर अपने अवाम से नहीं मिल लेता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म एडवर्ड हैथ से भी मुलाकात की। ढाका वापस आते हुए वो दिल्ली में रुके। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल भारतीय सदर विगरी और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने किया। 10 जनवरी 1972 को वो ढाका पहुँचे, जहाँ उनका नाकाबिले फरामोश इस्तकबाल किया गया।
एयरपोर्ट से उन्हें सीधा रेस कोर्स ग्राउंड में ले जाया गया, जहां उन्होंने अवाम के एक अजीमुल शान इज्तिमा से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान से तमाम तल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और 12 जनवरी 1972 को बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान की दरख्वास्त पर 12 मार्च 1972 को हिंदुस्तानी फ़ौज ने ढाका छोड़ दिया। आज़ादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने आइन के मसवदे पर दस्तखत किए और 16 दिसंबर 1973 को बांग्लादेश का नया आइन नाफज कर दिया गया। 7 मार्च 1974 को उन्होंने मुल्क में असर-ए-नौ आम इंतखाबात मुनक्कद करवाए, जिनमें उनकी जमात अवामी लीग ने 300 नशिस्तों में से 293 पर कामयाबी हासिल की। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और इसी वर्ष बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी बन गया। 1975 में बांग्लादेश में सदारती निज़ाम नाफज किया गया और मुजीबुर रहमान मुल्क के सदर बन गए। रफ्ता रफ्ता शेख मुजीबुर रहमान के करीबी अज़ा हुकूमत में ताकत पकड़ने लगे। ये अज़ा कुछ मरकज़ी वज़ारतों पर भी फायज किए गए। अवाम के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन्होंने आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि इसके समरात तक ना पहुँच सकें। ऐसे में 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश की मुसल्लह फ़ौज के कुछ अफसरान ने, जिनकी क़यादत मेजर फ़ारूक रहमान कर रहे थे, अलल सुबह 5:15 बजे बांग्लादेश के सदर शेख मुजीबुर रहमान की क़यामगाह पर दावा बोल दिया। वो शेख मुजीब को गिरफ़्तार करना चाहते थे ताकि बांग्लादेश में हुकूमत और तर्ज़ हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कुछ अहम ऐलानात कर सकें, मगर शेख मुजीबुर रहमान की मज़ाहमत की वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ी और नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान कत्ल हो गए। बादशाह इन अफसरान ने शेख मुजीबुर रहमान के अहले खाना को भी एक कमरे में जमा किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। शेख मुजीब की सिर्फ एक बेटी हसीना वाजिद ज़िंदा बची, जो इस खूनी इनकलाब के वक्त बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी। इस कत्ल गारतगिरी के बाद इनकलाबियों ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करने का ऐलान कर दिया और ख्वंदकर मुश्ताक अहमद को मुल्क का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। इनकलाबियों ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफज करने का ऐलान भी किया और कहा कि मुल्क का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश होगा। 21 बरस बाद 1996 में शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बन गई, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान और उनके अहले खाना के कत्ल में मुलव्वस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद कई मुल्ज़मान को सज़ाए मौत दे दी गई, जबकि कुछ मुल्ज़मान आज भी दूसरे मुल्कों में छुपते फिर रहे हैं।